اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس طرح سے ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ آپ سب سے پہلے لائک والے آپشن پر جائیں اور وہاں جا کر لائک پر کلک کریں۔ لائک پر کلک کرنے کے بعد جو آپ کو ریڈ والا آپشن نظر آ رہا ہے، سبسکرائب پر کلک کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں جس میں ماری اپنے شوہر حنظلہ کے ساتھ رہتی تھی۔ ماریا کو 15 سال بعد ایک بچہ ہوا۔ ماریا نے اس کا نام ماہر رکھا۔ ماہر کو سب پیار سے پرنس کہتے تھے۔ حنظلہ اور ماریا اپنے بیٹے پرنس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے۔ ماری اور حنظلہ پرنس کی ہر خواہش پوری کرتے۔ وہ جو چیز مانگتا اسے لا کر دیتے۔ ان دونوں کے پیار کی وجہ سے پرنس بہت بگڑ چکا تھا۔ پرنس بہت ضدی بچہ بن چکا تھا۔ ماری اور حنظلہ کے لاڈ پیار نے پرنس کو بہت بگاڑ دیا تھا۔ وہ بہت ضدی بچہ بن چکا تھا۔ ایک دن جب پرنس ہمسائے کے گھر میں کھیلنے کے لیے گیا تو ان کے گھر سے پیسے چرا کر گھر بھاگ آیا۔ جب ہمسائے کی آنٹی پرنس کے گھر میں آئی یہ بتانے کے لیے کہ پرنس نے ایسا کام کیا ہے تو ماری نے کہا نہیں، میرا بیٹا ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا، اور انہوں نے پرنس کو کچھ بھی نہ کہا۔ اب پرنس جب بھی کسی کے گھر کھیلنے کے لیے جاتا یا کہیں بھی جاتا تو کوئی نہ کوئی چیز چرا کر گھر لے آتا، لیکن ماری اور حنظلہ پرنس کی اس عادت کو نظر انداز کر دیتے۔ اسی طرح پرنس کو چوری کرنے کی عادت ڈل گئی۔ جب پرنس 6 سال کا ہوا، ماری اور حنظلہ نے پرنس کو ایک بہت اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخلہ کروایا۔ پرنس ہر روز اسکول میں بچوں کی کوئی نہ کوئی چیز چرا کر گھر لے آتا، اور اسی وجہ سے تمام بچے اور ٹیچر بہت تنگ آئے ہوئے تھے پرنس سے۔ ٹیچر نے جب پرنس کی ماں سے شکایت کی تو پرنس کی ماں نے کہا، آپ میرے بچے کو کچھ مت کہنا اور ہم سے پیسے لے لینا جو چیز جس بچے کی چوری ہوئی ہے۔ پرنس کے ماں باپ نے کبھی بھی پرنس کو نہ منع کیا، جس کی وجہ سے پرنس کو چوری کی بہت بری عادت ڈل گئی۔ اب پرنس 16 سال کا ہو چکا تھا اور وہ 10th کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ اسے پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ پرنس نے جیسے کیسے بھی کر کے 10th کلاس پاس کر لی۔ جب حنظلہ اور ماریا نے پرنس کو انٹر میں داخلہ لینے کے لیے بولا تو پرنس نے کہا، میں نہیں آگے پڑھوں گا، مجھے پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ ماریا اور حنظلہ نے جب یہ سنا تو ان کو چونکہ اپنے بچے سے بہت پیار تھا، اس لیے انہوں نے پرنس کو نہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ پرنس پہلے بھی بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، اب چونکہ ماری اور حنظلہ نے نہ پڑھنے کی اجازت دے دی، اسی وجہ سے پرنس ہر روز آوارہ گردی کرتا، چوری کرتا۔ اس کو چوری کی بہت بری عادت تھی۔ وہ پہلے بھی بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا اور نہ پڑھنے کی وجہ سے اور زیادہ بگڑ جائے گا۔ ایک دفعہ پرنس کی چوروں کے ایک بہت بڑے گینگ سے ملاقات ہوئی۔ چوروں کے گینگ نے پرنس کو اپنے گینگ میں شامل کر لیا۔ چوروں کا گینگ آئے دن پرنس سے کوئی نہ کوئی چوری کرواتے، کسی نہ کسی چیز کی۔ وہ اسے بدھو بنا کر جو چاہتے وہ کروا لیتے۔ پرنس چونکہ ابھی چھوٹا تھا، اسے زیادہ سمجھ نہ تھی، وہ ان لوگوں کی ہر بات مانتا۔ ایک دفعہ چوروں کے گینگ نے پرنس سے ایک بڑے گھر میں چوری کرنے کے لیے کہا تو پرنس نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے چوری کرنے کی عادت ہے، میں اس عادت سے بہت زیادہ مجبور ہوں، اسی وجہ سے میں چوری کرتا ہوں، ورنہ میں کبھی چوری نہ کروں تو میں اس گھر میں چوری نہیں کر سکتا۔ چوروں کے گینگ نے پرنس کو اکسایا تو پرنس مان گیا۔ رات کا وقت تھا، پورا ملک سویا ہوا تھا۔ پرنس اس گھر میں داخل ہوا، اس گھر کی تمام لائٹنگ آف تھی۔ پرنس کے ساتھ 2 اور بھی لوگ شامل تھے، وہ تینوں اس گھر میں داخل ہوئے۔ جب وہ لوگ چوری کر کے گھر سے واپس باہر نکلے تو اس گھر کی ایک لڑکی نے ان تینوں کو دیکھ لیا۔ جب وہ شور ڈالنے لگی تو جو 2 اور پرنس کے ساتھ لڑکے تھے انہوں نے اس لڑکی کا منہ زور سے پکڑ لیا تاکہ وہ شور نہ کر سکے۔
मुख पकड़ने की वजह से वह बेहोश होकर ज़मीन में गिर गई और वो दोनों वहाँ से भाग गए। भागते हुए प्रिंस की एक लड़की के साथ टक्कर हुई और टक्कर के दौरान प्रिंस का मोबाइल लड़की के मोबाइल के साथ चेंज हो गया। ना लड़की ने प्रिंस को देखा था और ना ही प्रिंस ने लड़की को देखा था। वो दोनों अपना अपना मोबाइल समझकर उठाकर ले गए क्योंकि दोनों के मोबाइल सेम थे। उस लड़की का नाम फिज़ा था। वो बहुत खूबसूरत थी और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसे सब प्यार से प्रिंसेस कहते थे। फिज़ा घर गई और घर जाकर सो गई। जब सुबह टाइम उठी तो उसने देखा उसके मोबाइल पर बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हुई हैं। उसने जब मोबाइल ओपन किया तो उसने देखा कि ये तो उसका मोबाइल था ही नहीं। उसी दौरान एक कॉल आई। फिज़ा ने सोचा शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉल हो। उसने कॉल अटेंड कर ली तो पीछे से आवाज़ आ रही थी, यार आज इस घर में चोरी करने के लिए जाना है। तो फिज़ा बहुत ज़्यादा हैरान हुई। तो उसे याद आया कि रात को उसकी टक्कर एक लड़के के साथ हुई थी, शायद उसके साथ मेरा मोबाइल चेंज हो गया है। वो सोचने लगी कि उस लड़के को मैं कैसे ढूंढूं और कहाँ ढूंढूं। उसे अचानक याद आया, क्यों ना मैं अपने मोबाइल पर कॉल करूं, शायद उसके पास मेरा मोबाइल हो। तो फिज़ा ने प्रिंस को कॉल की। दूसरी जानब प्रिंस हैरान हो गया कि मेरे मोबाइल पर मेरी ही कॉल आ रही है। प्रिंस ने कॉल अटेंड की तो फिज़ा बोली, आपका मोबाइल मेरे मोबाइल के साथ चेंज हो गया है, तो प्लीज़ आप मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दें। प्रिंस लड़खड़ाती हुई ज़ुबान के साथ बोला, मेरा मोबाइल आपके पास है? तो फिज़ा ने कहा, जी आपका मोबाइल मेरे पास है और मेरा मोबाइल आपके पास है, तो मैं आपको किस जगह पर आपका मोबाइल वापस करने के लिए आऊँ? तो प्रिंस ने कहा, आप फलां जगह पर आ जाना। तो फिज़ा तैयार होकर उस जगह पर गई। फिज़ा बहुत प्यारी लग रही थी। फिज़ा ने वाइट कलर की एक बहुत बड़ी फ्रॉक पहनी हुई थी। फिज़ा ने देखा कि जिस जगह पर प्रिंस ने उसे बताया था वहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसने दूसरी जन्म मुँह किया हुआ है। फिज़ा उसके पास गई, उसे कहा, हेलो सुनिए। तो जब प्रिंस ने अपना मुंह पीछे की जानिब फेरा तो वो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक लड़की को देख रहा है या परी को। प्रिंस बस फिज़ा को देखते ही जा रहा था और फिज़ा को भी प्रिंस बहुत ही प्यारा लगा। प्रिंस ब्लू कलर के ड्रेस में मबलूस बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। प्रिंस फिज़ा को देखता ही जा रहा था। उसे एकदम लगा जैसे उसे फिज़ा के साथ मोहब्बत हो गई है और फिज़ा को भी ऐसा ही लगा। लेकिन फिज़ा के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये तो एक चोर है और ये चोरी करता है, मुझे इससे मोहब्बत कैसे हो सकती है। फिज़ा अपने घर चली गई और प्रिंस भी अपने घर की तरफ चला गया। प्रिंस हर वक्त फिज़ा की ही सोचों में गुम रहता। फिज़ा 18 ईयर की थी और प्रिंस भी 18 ईयर का ही था। फिज़ा जब यूनिवर्सिटी जा रही थी तो प्रिंस ने देखा ये तो वही लड़की है। फिज़ा यूनि के अंदर दाखिल हो गई तो प्रिंस ने सोचा जिस लड़की को मैं इतने दिनों से तलाश कर रहा था वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अब प्रिंस हर रोज़ फिज़ा के पीछे आता। फिज़ा ने इस बात को नोट किया था, उसे अच्छा लगता था लेकिन वो खामोश रही। जब 2-3 दिन लगातार प्रिंस फिज़ा के पीछे आया तो उसके दोस्तों ने नोट किया फिज़ा की। तो फिज़ा को बहुत गुस्सा आया कि उसकी दोस्त से बात करती थी कि वो लड़का तुम्हारे पीछे आता है, लेकिन असल में प्रिंस अपने कज़न को यूनिवर्सिटी में छोड़ने के लिए जाता था। फिज़ा के साथ ही वो लड़की पढ़ती थी जो प्रिंस की कज़न थी। प्रिंस की कज़न फिज़ा के साथ ही पढ़ती थी। जब प्रिंस हर रोज़ फिज़ा को देखता था तो प्रिंस की कज़न ने नोट किया कि प्रिंस उस लड़की में बहुत इंटरेस्टेड है। तो उसने कहा, प्रिंस क्या बात है? तो प्रिंस ने सारा माजरा अपनी कज़न को बताया। तो कज़न ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। तो प्रिंस की कज़न ने सारा माजरा फिज़ा को बताया। तो फिज़ा को ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वो तो फिज़ा ने कहा वो तो एक चोर है, वो चोरी करता है। तो प्रिंस की कज़न ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, वो चोर है, बस उसे चोरी की आदत है, ये आदत उसके माँ बाप ने उसे डलवाई थी।
उसने सारा माजरा फिजा को बताया कि वो छोटे होते वक्त जब चोरी करता था उसके माँ बाप उसे मना नहीं करते थे, इसी वजह से उसे चोरी की आदत डल गई है। प्रिंस की कज़न यानी माहिरा ने उसे बताया कि कभी कभी प्रिंस अपनी इस आदत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। एक दिन माहिरा फिजा को प्रिंस के घर लेकर गई तो प्रिंस के माँ बाप ने कहा, बेटा एक लड़की है जिससे प्रिंस बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वही प्रिंस को सुधार सकती है। तो हमें माहिरा ने बताया है कि वो लड़की तुम हो। बेटा क्या तुम हमारे बेटे को सीधे रास्ते पर ला सकती हो? तो फिजा ने जवाब दिया, आंटी सीधे रास्ते पर लाने वाली मैं कौन होती हूँ, रास्ता तो खुदा दिखाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उसे इस चोरी की आदत से छुड़वाऊँ, क्योंकि मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उसे चोरी की वजह से मैं कुछ नहीं कह पाती। जब एक दिन फिजा कॉलेज जा रही थी तो प्रिंस ने सोचा कि आज मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दूंगा। उसने जाकर फिजा को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया तो फिजा ने कहा, तुम चोर हो और चोरी के सिवा करते भी क्या हो, और मुझसे मोहब्बत करने चले, तुमने स्टडी कभी की नहीं है, जब तुम मेरी क्लास के बराबर हो जाओगे ना तब मुझसे कहना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम चोर हो और चोर ही रहोगे, क्या तुम चोरी की आदत छोड़ सकते हो? फिजा ने प्रिंस को बहुत ज़्यादा बातें की और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। प्रिंस की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो वहाँ से चला गया। फिजा, माहिरा और प्रिंस के माँ बाप मिले हुए थे प्रिंस को चोरी की आदत छुड़वाने के लिए। जब प्रिंस बहुत दुखी हालत में घर गया तो माहिरा ने कहा, क्या हुआ है? तो प्रिंस ने सारा माजरा सुनाया और कहा, अब मैं क्या करूं? तो माहिरा ने कहा, तुम आगे पढ़ो और चोरी की आदत छोड़ दो। फिजा की बातें प्रिंस पर बहुत असर की और प्रिंस ने दोबारा इंटर में दाखिला लिया। उसने एक साल में 2 क्लासेस की। जब पेपर देने के बाद प्रिंस का रिजल्ट आया, फिजा, माहिरा और प्रिंस के माँ बाप देखकर हैरान रह गए कि उसने अपने कॉलेज में टॉप किया है। तो फिजा बहुत ज़्यादा खुश हुई और अब प्रिंस फिजा की ही क्लास में था। एक दिन जब फिजा यूनिवर्सिटी में खड़ी थी तो प्रिंस उसके पास आया और कहा, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिजा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और उसने कहा, मुझे क्या मालूम था कि मेरी बातें तुम पर इतनी ज़्यादा असर करेंगी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें चोरी की आदत छुड़वाने के लिए ऐसा बोला था। तो प्रिंस ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, मुझे माहिरा ने सब कुछ बता दिया था। तो फिजा ने कहा, सॉरी मैंने तुम्हें इतना बुरा कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो प्रिंस ने कहा, सॉरी मुझे कहना चाहिए, क्योंकि भी लड़की बर्दाश्त नहीं करती जिस शख्स से उसकी शादी हो उसमें तमाम बुरी आदतें पाई जाती हों, और मुझे तुम्हारा शुक्रिया कहना, तुमने ये परवाह ना की कि तुम मेरी नज़रों में बुरा बन जाओगी और तुमने मुझे संवारने की कोशिश की। तुम्हारा मुकाम मेरे दिल में पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। आप बहुत अच्छी हैं। प्रिंस ने कहा, प्रिंसेस फिजा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तो फिजा ने कहा, हाँ ज़रूर, मुझे आपसे शादी करके बहुत खुशी होगी कि मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की जो दूसरों के एहसासात और जज्बात को समझता है। फिजा के माँ बाप भी इस शादी के लिए रजामंद हो गए और उन दोनों की शादी हो गई। वो बहुत खुश थे और खुशी खुशी रहने लगे। इसीलिए कहते हैं कभी कभी इंसान की तलख बातें भी आपकी ज़िंदगी को संवार देंगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।